Good morning, students. Today I am going to continue a lesson Enemy by Pulse Esper, and it is your part 13. The main characters of the story are Dr. Sadaf, Anna, Tom, who was an American prisoner. So up till now I have explained you that Dr. Sadaf has operated American prisoner and the operation was successful. Now he is giving treatment to the American prisoner. So what happened next? And one of the messenger came to the Dr. Sadaf's house and Hannah got troubled कि कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर सदाव को ये अरेस्ट कर ले, लेकिन उसने बताया कि जनरल के दर्द हो रहा है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाने आया हूँ. All the messengers exclaimed, "Is it not enough?" "Indeed it is," she replied. "I am very sorry." When Sadav came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children went asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from her work. मैसेंजर के आने पर आना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. किचन में गई, वहाँ पर भी वो डरी डरी महसूस कर रही थी. वो अपने आप में थकावट महसूस कर रही थी, कोई काम करने की वजह से नहीं, सिर्फ उस मैसेंजर को देखकर उसके अंदर जो डर आया उसकी वजह से. I thought this had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious. "I must get rid of this man for your sake," he said in distress. "Somehow I must get rid of him." वो हाना कहती है डॉक्टर सदाव से, मुझे तो ऐसा लगा था ये तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं. तो डॉक्टर सदाव रिप्लाई देते हैं कि अब मैं जल्दी से जल्दी इस अमेरिकन प्रिजनर का कुछ कर दूँगा. Of course, the general said weakly, "I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have." "I care nothing for the man, Excellency," Sadav said, "but having operated on him with such success." अब यहाँ पर वो ओल्ड जनरल के पास जाता है, उसको बता देता है कि उनके पास एक इसी तरीके से अमेरिकन प्रिजनर आया, मैंने सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन कर दिया. वहाँ पर जनरल उससे कहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और इस बात को मैं ही नहीं हर कोई कह सकता है और तुम किसी को भी बचा सकते हो. यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो इम्पोर्टेंट. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. और तुम मेरा ऑपरेशन करने के बाद मुझे यकीन है कि एक अटैक तक और मुझे जिंदा रख सकते हो, तुम इतने इंटेलिजेंट सर्जन हो. Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long, pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. "You cannot be arrested," the general said, closing his eyes. "Suppose you were condemned to death, and the next day I had have to have my operation." तो यहाँ पर जनरल कहता है टेंशन लेता हुआ कि सर्टेनली मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा. क्यों? क्योंकि अगर तुम अरेस्ट हो गए तो मेरा क्या होगा. सपोज ऐसा मान लेते हैं कि अगर तुम्हें डेथ की, तुम्हें मौत की सज़ा हो गई और दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन है, तो मेरा ऑपरेशन करने वाला कौन होगा. "There are other surgeons, Excellency," Sadav suggested. "None I trust," the general replied. "The best one have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died." तो डॉक्टर सदाव रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, और भी तो इंटेलिजेंट सर्जन्स हैं यहाँ पर और उनसे भी ऑपरेशन करवाया जा सकता है. तो जनरल तुरंत जवाब देते हैं कि नहीं, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता. भले ही जर्मन के द्वारा एक से एक ट्रेन यहाँ पर सर्जन है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ और किसी पर नहीं. ऑपरेशन में करवाऊँगा तो तुमसे ही करवाऊँगा. "I do not care for their point of view," he sighed. "It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to the execution, and yet I could be sure you would not murder
me while I was unconscious. तो यहाँ पर अमेरिकन जनरल और आगे कहता हुआ कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है और मुझे किसी के विचार की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर विश्वास है। और तुम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि उस अमेरिकन को फांसी दिलवा सकते थे। द जनरल लाफ्ड एंड और ये भी हो सकता है कि तुम मेरे ऑपरेशन के द्वारा मुझे भी मार सकते हो। He had an unusual sense of humor. As a Japanese, you could not combine these two foreign elements, he asked. Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake, I would be willing to try, Excellency. तो हंसते हुए ये बात उसने ऑफिस जनरल ने कही थी। और फिर उसके बाद सदाव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कोशिश करूँगा कि तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब रहे। The general shook his head. I had rather not be test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritated. अब जनरल अपनी गर्दन हिलाता हुआ कहता है कि हाँ ठीक है, और मैं भी चाहता कि मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट केस बन के चलूँ या तुम जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वैसा ऑपरेशन करूँ, क्योंकि मैंने पैसिफिक में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाई थी। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात हुई है कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर ये अमेरिकन प्रिजनर बहता हुआ आ गया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। इट वुड बी द बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइट, be killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send two of them to your house tonight or better any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. अब यहाँ पर जनरल एक सजेशन देता है कि क्यों ना इस व्यक्ति को मरवा दिया जाए। मेरे पास दो एक ऐसे एसेसिन हैं, प्राइवेट एसेसिन हैं जो मर्डरर हैं, कि चुपचाप से वो दोनों जाएंगे और किसी को पता नहीं लगेगा और उस अमेरिकन को मार देंगे। मौसम भी अच्छा है, गर्म मौसम है, तो उसके कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ देना, खुले हुए होंगे तो वो दोनों आसानी से उसे मार देंगे। Certainly it would be very natural, Sadav agreed. In fact, it is so left open every night. Good, the general said gambling. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. Sadav considered. That perhaps would be the best, Excellency, he agreed, thinking of Hana. अब यहाँ पर और भी सजेशन देता है जनरल कि दोनों एसेसन काफ़ी कैपेबल हैं, वो कोई शोर भी नहीं करेंगे और आसानी से उसको मार भी देंगे, और तुम चाहो तो मैं उसकी बॉडी को भी रिमूव वहाँ से करवा सकता हूँ। ये दोनों के दोनों उसकी बॉडी रिमूव कर देंगे और हाना को भी कुछ पता नहीं लगेगा। ये उसने सदाव ने सोचा अगर इनकी बॉडी रिमूव हो गई वहाँ से। He left the general's presence and then went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. और फिर उसके बाद जनरल का कमरे से बाहर आ गया, जनरल के घर से बाहर आ गया, प्लान बनाता हुआ कि इस तरह से मेरे हाथ से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और मैं हाना को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो एसेसेंस आएंगे, आइडिया भी एसेसेंस का अच्छा है, वो दोनों एसेसेंस इसको मार देंगे और कुछ भी नहीं होगा। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. He refused to allow anything but reason to the atmosphere of his mind. अब वो अपने आप में माइंड में ये बातें सोचता हुआ जा रहा आया। अमेरिकन अपने बेड पर था और उसके मन में ये था कि शायद अमेरिकन बेड पर होगा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसे सरप्राइज हुआ कि अमेरिकन प्रिजनर गार्डन में घूमने के लिए तैयारी कर रहा है। और फिर डॉक्टर सदाव से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम कमरे से बाहर जाओ। तो यहाँ पर अमेरिकन प्रिजनर रिप्लाई देता है टॉम कि मैं किसी की परमिशन की मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए बस सिर्फ मेरे मसल्स जो हैं वो थोड़े हार्ड फील हो रहे हैं,
ऐसा ही है। सदाव ने इंक्वायर किया उसकी बॉडी को, फिर से उसके मसल्स को, और वो जो पुरानी बातें वो सोचता हुआ आया था जनरल के यहाँ से, वो सारी बातें भूल गया। अब डॉक्टर सदाव ने सोचा कि उसके खिलाफ सोचा। ही लिफ्ट उसके अमेरिकन प्रिजनर टॉम के शर्ट को उठाया और जो स्कार था, घाव था, उसको देखा। शायद लगता है, डॉक्टर सदाव उससे कहते हैं टॉम से, कि शायद लगता है कि तुम्हें अब मसाज की ज़रूरत है। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो तुम मसाज करवा सकते हो, उससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर यंग मैन टॉम कहता है कि मुझे इसकी कोई भी परेशानी नहीं है, ये सही रहेगा। यंग फेस वॉज joined under the stubbly blonde beard, say doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a chap like you, well, I wouldn't be alive today, I know that. तो यहाँ पर जैप अमेरिकन टॉम बताता है कि अगर डॉक्टर सदाव से कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बच पाता। सदाव झुका रहा और कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर डॉक्टर सदाव फिर टॉम रिप्लाई देता है कि his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, then there wouldn't have been a war. तो टॉम कहता है कि अगर सारे जैपनीज तुम्हारे जैसे हों तो शायद अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध नहीं होता। तो डॉक्टर सदाव थोड़ी परेशानी के साथ कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब मेरा अंदाज़ा है कि तुम अपने बिस्तर पर जाओ। और फिर वो उस लड़के की मदद करते हुए झुककर कहता है गुड नाइट। ही सेड। सदाव स्लेप्ट बैडली एट दैट नाइट। उस रात सदाव अच्छे से नहीं सो पाया, बार बार उसकी आँख खुल जाती, ये सोचते हुए कभी जो हल्की सी भी घर के बाहर आवाज़ हो रही थी, जैसे कि किसी की कदमों के चलने की आवाज़, क्योंकि वही सोच रहा था कि अब वो दो एसेसिन आएंगे और इसको मार देंगे। कभी डाली की लकड़ी टूटते हुए गार्डन में गिर रही है, इस तरीके से आवाज़ें सुनकर वो थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरी सुबह उसने देखा तो सबसे पहले वो गेस्ट रूम में गया जहाँ पर अमेरिकन था। अमेरिकन कि अगर यहाँ से अमेरिकन चला गया होगा, दोनों एसेसिन अगर उसे ले गए होंगे जैसे कि जनरल ने कहा है, तो मैं सिंपली हाँ ना को बता दूँगा। बट वेन ही ओपन द डोर ही सॉ इट वाज। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो टॉम था वो अपने बिस्तर पर वैसे ही सो रहा था। ही कुड हेयर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप। और उसने शांत एक सांस की आवाज़ सुनी। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने हाना को बताया डॉक्टर सदाव ने कि अभी भी वो सो रहा है। व्हाट शैल वी डू विद हिम। अब हाना फिर से पूछती है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। सदाव ने अपनी गर्दन झुकाई और गर्दन हिलाते हुए कि मैं बोलता है डॉक्टर सदाव कि 1 या 2 दिन में मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा। तभी अचानक इसके अब दूसरी रात आई और शायद अब डॉक्टर सदाव ने सोचा कि शायद ये जो दूसरी रात है ये कामयाब रहेगी। तभी रात को हवा चलने लगी। उसने फिर से वही आवाज़ सुनी डालियों की और पार्टीशंस के खुलने हिलने डुलने की। हाना भी जाग गई। Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. अब हाना भी जाग गई और हाना फिर उससे कहती है कि हमें अब उस अमेरिकन टॉम के कमरे में नहीं जाना चाहिए। तो सदाव कहता है नहीं, अब वो सब ought we not to go and close the sick man's partition। तो यहाँ पर हाना एक सजेशन देती है कि शायद उसके पार्टीशन हमें बंद कर देने चाहिए। सदाव कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो अब अपने आप सब कुछ कर सकता है। क्योंकि सदाव को तो ये पता था कि वो क्या कहते हैं उसका 2 एसेसिन शायद मारने आया हो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। लेकिन दूसरे दिन भी अमेरिकन वहीं पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स माइट बी द नाइट। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन। अब तीसरी रात आई, हवा भी चल रही थी, हल्की बारिश भी हो रही थी। इन द गार्डन, और जो गार्डन था बारिश की बूंदों की आवाज़ें आ रही थी।
सदाव थोड़ा सा आसानी से सोने लगा, लेकिन एक आवाज़ आई और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। हाना ने कहा, ये क्या है? एकदम से हाना की आवाज़ सुनकर बच्चा भी जाग गया और रोने लगा। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। सदाव शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू, डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो। तो सदाव ने फिर से हाना ने कहा कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, और उसका जो डर था उससे हाना परेशान हो गई थी। वो एक तरीके से जैसे बिना सांस की खड़ी की खड़ी रह गई, बिल्कुल शांति थी। टुगेदर दे क्रैप्ड बैक इनटू हिज बेड, द बेबी बिटवीन देम। वैसे वो नहीं गया और वहीं पर सो गया, बीच में बच्चा सो रहा था। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ऐसे ही चलता रहा कि वो वेट करते रहे डॉक्टर सदाव कि कब एसएसएन आएंगे और कब उसको मार देंगे। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अब जब सुबह हुई, उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा यंग मैन वहीं पर था, और उसने रेजर के लिए पूछा था डॉक्टर सदाव से। वो रेजर मिल गया, उसने अपनी शेविंग कर ली। अब वो उसका चेहरा भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा। सदाव ने अपना नाइट सूट खींचा और उसने ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर हिम। अब डॉक्टर सदाव को बिल्कुल भी केयर नहीं थी यंग मैन के जीवन की कि वो जिंदा रहे या मर जाए। उसका जो काम था उसने उसके ऑपरेशन कर दिया। स्टूडेंट, this lecture has been completed till here. In the next video I will explain you that what happened next. Till then, thank you and good.